Two students performed the same experiment separately and each one of them recorded two readings of mass which are given below. Correct readings of mass is 3 gram. Means the object which mass was weighed, it was actually 3 gram. And the following data was noted by both the students. Like student A noted first reading 3.01 and second 2.99, and the B noted 3.05 first experiment, and second experiment he noted 2.95. They are asking which of the following option is correct. तो अगर आप 3.01 और 2.99 को ऐड कर लोगे ना और इसका एवरेज निकालो तो एग्जैक्टली 3 आएगा। सिमिलरली बी का भी आप देखोगे 3.05 एंड 2.95 ऐड करोगे 6/2 एग्जैक्टली 3 आएगा। यानी कि जो मेजरमेंट्स हैं वो एक्यूरेट हैं और इनमें क्लोजनेस भी आपको दिखाई पड़ रही है। 3.01 2.99 बहुत क्लोज वैल्यूज है और ऐसे ही 3.05 2.95 वो भी आपकी क्लोज वैल्यूज में ही काउंट होगा, यानी कि एक्यूरेट तो वो है ही है। यानी कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वन। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। लेकिन जो बी वाले का डाटा है उसमें इतनी ज्यादा क्लोजनेस भी नहीं है। क्लोजनेस का मतलब है 3.01 हो 3.02 हो, जैसे यहाँ पे 3.0 होता 2.9 होता, तो ये तो काफी क्लोज है। लेकिन जो स्टूडेंट बी है उसका डाटा में लगभग लगभग ये 0.05 है और ये 0.95 है, तो है लगभग 10 का 0.10 का डिफरेंस आप बोल सकते हो कि 0.95 में आप जब कितना जोड़ोगे 10.10 जोड़ोगे तभी तो वो 3.05 हो जाएगा आपका। तो इसलिए पहले वाले के अगर हम पढ़े रिजल्ट्स ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, तो गलत हो रही है। थर्ड देखें रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट बी आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, तो एक्यूरेट तो है। थर्ड आ रहा है 3 आ रहा है दोनों का एवरेज। रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ये बात गलत है। बी में क्लोजनेस बहुत ज्यादा नहीं है, इसको हम क्लोजनेस नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। Question number second. A measured temperature on Fahrenheit scale is 200 degree Fahrenheit. What will this reading be on Celsius scale? तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और इसमें आप वैल्यूज जब पुट करेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट आपको दे रखा है 200, सो डिग्री फ़ारेनहाइट यू विल पुट 200 and accordingly you will calculate and then you get your answer. So it comes 93.3 degrees Celsius. So you put the value of degree Fahrenheit in this formula and you will get your answer 93.3 degree Celsius. Let us go for the next question now. Question number third. What will be the molarity? Molarity means number of moles of solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूट दिया हुआ है 5.85 ग्राम एंड द मोलर मास ऑफ NaCl इज 58.5, 23 is of Na and 35.5 of Cl, so it comes 58.5 divided by volume of solution in liter. So volume is given 500 and you need to convert it to liter and you need to divide by 1000 for the same. So by applying this you will get 0.2 mole per liter, 0.2 mole per liter, that is option number third is correct. 0.2 mole per liter, option number third is correct. ये 5.85 है, नीचे 58.5 है, आप यहाँ पे डेसिमल लगा के ये 1/10 यानी कि ऊपर कितना बचा 0.1 बचा आपका, डिवाइडेड बाय ये कितना बचा 0.5, 500 बाई
1000 0.5 पॉइंट से पॉइंट चला गया, आपका कितना आ गया 1/5, दैट मीन्स 0.2। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Question number 4. If a 500 ml of a 5m solution is diluted to 1500 ml, so volume V1 is given, molarity M1 is given, volume V2 is given. They are asking what will be the molarity. That means M2 they want to ask. So simple relation is there. M1 V1 is equal to M2 V2. M1 V1 is equal to M2 V2. So everything is given and you will put in the formula. M1 is 500, V1 is given 5 capital M, and V2 is 1500 ml. So 5 3 are 15 and 5 divided by 3, it comes 3 1s are 3, 3 6 are 3 6 are. So question number 4, second option is correct. 1.66 is correct. Let's go for the question number 5. Question number 5. Number of atoms present in 1 mole of an element is equal to Avogadro's number. Which of the following element contain the greatest number of atoms? तो आप मोस्ट सिंपली फाइंड आउट कर लो। यहाँ पे आप मोल्स निकालोगे, ग्राम बाई मोलर मास, दैट इज 2 ग्राम पर मोल ऑफ हीलियम। कितने मोल्स आ गए? 2 मोल्स। यहाँ पे आप सोडियम के लिए जाओगे, 23 2 जा 2 मोल्स ऑफ सोडियम, तो सेम हो रहे, तो सेम हो गए। यानी कि ये तो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये केवल वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है आपके पास। 0.40 कैल्शियम, सो डिवाइड बाई 40, ये तो काफी कम मोल्स आएंगे। एंड इट इज 2 ग्राम ऑफ हीलियम, तो 2 ग्राम ऑफ हीलियम, सो सॉरी, its molar mass is 4, very sorry, so it comes 1 mole, or 46 it comes 2 moles, but here it comes 3 moles, and here it comes 0.40 divided by 20, right? तो ये आपको कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा मोल्स तुम्हारे पास कहाँ पा रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं 4। नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा आपके पास 4 मोल्स आ रहे हैं, तो इसी में ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रहेंगे। तो ऑप्शन 4 आपका जो है दैट वुड बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, if the concentration of glucose in blood is 0.9 gram per liter, what will be the molarity of glucose in blood? So molarity means number of moles of solute upon volume of solution in liter. So moles कैसे पता करने वाले हो तुम? ग्राम बाई मोलर मास, तो ग्राम is given 0.9 and molar mass of glucose comes 180 gram per mole डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। आप देख पा रहे हो ये जो ग्राम आपको दिए गए हैं ये पर लीटर में आपको दिए गए हैं, सो यू डिवाइड बाई 1, सो इट कम्स 0.005 कैपिटल एम। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इट कम्स 0.005 कैपिटल एम। यहाँ से डेसिमल हटाओ, यहाँ 0 लगाओ, 9 2 जा दैट इज 1/200, 1/200। इसको तुम ऐसा कर सकते हो, ये हो गया 0 इसको आप ऐसा लिखो, ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻²। ये जो नीचे वाले दो जीरो है ना, ये ऊपर जब जाएंगे -2 हो जाएंगे, और जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 0.005 कैपिटल एम योर आंसर वुड बी। सो क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 0.005 कैपिटल एम। Question number 7. What will be the molality of the solution containing 18.25 gram of HCl in 500 gram of water? So formula of molality is number of moles upon mass of solvent in kg. तो number of moles कैसे पता करने वाले हो? ग्राम बाई मोलर मास।
substance is HCl gas and its molar mass is 36.5 divided by 500 gram water is given, but you need in kg, so you divide by 1000. ऊपर आप इसको डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा आपका 0.5, और इसको करोगे आप तो ये भी कितना आ गया 0.5. योर आंसर इज 1 कैप स्मॉल m मोल पर केजी. ऑप्शन फोर्थ वन इज करेक्ट. पर 8, 1 mole of any substance contains 6.022 into 10 power 23 atoms per molecule. ये तो एवोगैड्रोस बताए गए थे हमें. Number of molecules of H2SO4 present in 100 ml of 0.02 capital M H2SO4 solution. Number of molecules जानना चाह रहे हैं, तो मोल्स पता कर लें. Molarity is equal to number of moles of solute upon volume of solution in liter. Molarity of H2SO4 is given 0.02 and number of moles हम पता कर लेते हैं. n वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है 100 ml, बट यहाँ पे हमें लीटर्स में चाहिए होता है, सो डिवाइडेड बाई 1000. तो ये आपका हो जाएगा n इज इक्वल टू 0.02 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000. इतने मोल्स आ गए हमारे पास. ये 2 0 से 2 0 चले गए, और इसको अगर आप और करेंगे तो ये 0.002 आ जाएगा, है ना. ये तो हो जाएगा, ये 0 ऊपर चलेगा 0.02. इतने मोल आ गए आपके पास, और आपको कन्वर्ट करना है किसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में. तो एक मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10^23. आपके पास कितने मोल्स आ गए 0.002 इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10^23. इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा 12.044 इंटू 10^20 मॉलिक्यूल्स. सो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. नाउ वी सी सर्टेन क्वेश्चन व्हिच हैव more than one option correct. So question number 16 says 1 mole of oxygen gas at STP is equal to, किसी भी गैस का 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितना होता है, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल. तो अगर हम बात करें किसी भी गैस की, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, उसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओके. और अगर ऑक्सीजन की ही बात करें तो इसका मोलर मास कितना रहता है 32 ग्राम पर मोल. तो 32 ग्राम पर मोल ऑक्सीजन गैस में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे. तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शंस आर करेक्ट. सेकंड में क्या दिया है 6.022 इंटू 10^23 ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. देखो ऑक्सीजन गैस की जब बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन एक डायटोमिक गैस है, तो इसलिए एटम्स होंगे तो क्या होंगे, डबल होंगे. मॉलिक्यूल्स की बात बिल्कुल सही है. कह रहे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये दोनों स्टेटमेंट तभी सही हो पाते हैं जब हमसे हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस से बात करते हैं. क्यों बेटे, हमसे कितने बात कर रहे हैं 1 मोल, तो किसी भी गैस का 1 मोल हो उसके मोलर मास के इक्वल, और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रोस नंबर्स के इक्वल. सो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ बोथ आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18, which of the following pairs have the same number of atoms. एटम्स का नंबर सेम हो तो आपको सभी में कैलकुलेट करना पड़ेगा एटम्स कितने, तब आप बता पाओगे. लेकिन देखो थोड़ा कोशिश करते हैं जल्दी वाली. ये 28 ग्राम डाई नाइट्रोजन है, तो इसमें कितने मोल्स हो गए 2 मोल्स, नहीं नॉट 2 मोल्स 1 मोल. 28 ग्राम नाइट्रोजन है ना, इसका मोलर मास भी कितना होगा 28 ग्राम ही होगा, तो 1 मोल यहाँ पर है. और ये भी कितना है बेटा, अभी बात कर रहे थे 16 टू 32, यहाँ भी कितना है 1 मोल. तो ये जो पेयर है इसमें दोनों में नंबर ऑफ मोल्स कैसे सेम 1 1, तो मॉलिक्यूल्स का नंबर भी सेम होगा. एक फोर्थ वाला देखते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इसका एटॉमिक मास भी कितना होगा, मोलर मास 12 ग्राम पर मोल, 1 मोल इसमें भी है. और सोडियम का भी आपको मालूम है मोलर मास 23 ग्राम पर मोल, इसमें भी कितने 1 मोल. तो थर्ड में मोल्स सेम है,
मॉलिक्यूल्स ही हैं। फोर्थ में भी मोल सेम है, एटम्स हैं, तो दोनों में नंबर ऑफ एटम कैसे आएंगे, सेम आएंगे। यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, सेकंड में देखो 16 ग्राम O2 यानी कि हाफ मोल्स हो गए। यहाँ पे कितने 44, यहाँ कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स, नहीं नहीं 1 मोल। CO2 का मोलर मास 44 ग्राम पर मोल है, तो यहाँ पे हाफ मोल्स आ रहे हैं। और यहाँ कितने आ रहे हैं 44 में, 2 मोल्स, सॉरी सॉरी 1 मोल है, तो यहाँ तो इक्वल नहीं आ रहे। यहाँ पे कितना है हाफ मोल, और 4 ग्राम ऑफ H2 यानी कि डिवाइड कितने से करोगे 2 से, यहाँ 2 मोल्स, तो यहाँ भी इक्वल नहीं आ रहे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ वाला जो है ये दोनों ही करेक्ट है, इसमें दोनों में नंबर ऑफ मोल्स सेम आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स सेम तो एटम्स भी सेम। क्वेश्चन नंबर 20, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन। कह रहे हैं इनमें से कौन सी स्पीशीज ऐसे, कौन सा डाटा ऐसा है जिसमें उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं जितना 16 ग्राम ऑक्सीजन में है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन मोल्स निकाल लो आप, 16 डिवाइडेड बाई 32 कितना आ गया, हाफ मोल आ गया। अब जिसमें हाफ मोल हो उसमें मॉलिक्यूल कैसे होंगे, सेम हो। तो आप देखो यहाँ 16 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन का कितना हो बच्चों 12, ऑक्सीजन का 16 तो कितना हो गया 12 और 16 आपका 28। तो ये तो 16 बाई 28 मोल्स आ रहे हैं। 16 यहाँ कितना आ रहा है हाफ मोल, 16 बाई 28 हाफ मोल तो नहीं आएंगे। 28 ग्राम ऑफ N2, 28 डिवाइड बाई 28, N2 कितना हो गया 14 टू या 28 1 मोल, तो हाफ मोल तो नहीं आ रहे। 14 ग्राम ऑफ N2 डिवाइड बाई 28, हाँ ये हाफ मोल आ रहे हैं, जितना 16 टू जो 32 करने में मिल रहा है। देन 1 ग्राम ऑफ H2, ये भी 1/2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ में मोल्स कैसे आ रहे हैं, सेम। और जब मोल सेम तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस, जिसकी कोई यूनिट ही ना हो। तो मोलैलिटी की तुम्हें मालूम है मोल पर केजी, मोलैरिटी की तुम्हें पता है मोल पर लीटर, मोल फ्रैक्शन की नहीं होती कोई यूनिट, ऐसी मास परसेंटेज की भी यूनिट नहीं होती है। तो 21 का ऑप्शन थर्ड और फोर्थ आ। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, मैचिंग करनी है आपको। और पहला केस आपका 88 ग्राम ऑफ CO2। तो 88 ग्राम ऑफ CO2 का मतलब हो गया, अगर मोल्स आप इसके निकालोगे तो 88 डिवाइड बाई 44 कितना आ जाएगा आपके पास, 2 मोल्स आ जाएंगे। 2 मोल्स आपका किसमें आ रहा है, बी में आपको मिल रहा है। देन यू हैव थर्ड 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसका मतलब कितना हो गया 1 मोल, नंबर के इक्वल है। देन यू हैव 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP O2। तो 5.6 का को डिवाइड करो 22.4 लीटर से, तो कितना आ जाएगा 0.25 मोल आ जाएगा आपका। भाई किसी भी गैस के एक मोल में 22.4 लीटर होते हैं STP पर, तो यहाँ पे 5.6 लीटर में कितने मोल्स होंगे, 5.6 डिवाइड बाई 22.4 कितना आ जाएगा 0.25 मोल आ जाएगा। तो थर्ड का आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। देन यू हैव 96 ग्राम ऑफ O2, 96 ग्राम ऑफ O2 का मतलब है डिवाइड बाई 32 कितना आ गया, यस 3 मोल्स। और फिफ्थ वाला मैं बताऊंगा ही नहीं आपको, है ना, क्योंकि आपको पता चल गया 1 मोल ऑफ एनी गैस इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये आपकी मैचिंग हो गई, इसके हिसाब से ऑप्शन भी आप सर्च कर लेंगे 36 का। ये क्वेश्चन नंबर 37 मैचिंग का ही केस है। फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, उनकी यूनिट दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज मोलैरिटी, ढूंढो भाई, बड़े सारे ऑप्शंस हैं। तो मोलैरिटी का मोल पर लीटर कहाँ गया, ई वाला लग रहा है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका ई वाला, मैं इसको मैच कर देता हूँ। मोलैरिटी का ई मोल पर लीटर। देन वी हैव मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का हो गया, तो यूनिट होती नहीं है भाई, ये पकड़ लिया हमने, देखो यूनिट लेस है, डी ऑप्शन इज मैचिंग। थर्ड मोल, मोल की यूनिट अगर आपको याद हो MOL लिखा करते हैं, केवल ई हटा देते हैं।
नेक्स्ट वी हैव फोर्थ मोलालिटी, मोल पर केजी। मिल रहा है कहीं? हाँ ये रहा, देखो जी वाला, मोल पर केजी। छुपे बैठे हैं सर। फिफ्थ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट पास्कल। हाँ वेरी गुड, सी वाला हो गया, सी हो गया, वेरी गुड। देन वी हैव सिक्स्थ लुमिनस इंटेंसिटी। याद हो तो कैंडेला हुआ करती है उसकी यूनिट, ऐसा यूनिट पढ़ा है आपने। डेंसिटी का ग्राम पर एमएल, ये रहा ए वाला। मास, मास केजी में, यानी कि आई वाला हो गया। एक बच रहा है, ये कैसे बच गया? न्यूटन पर मीटर, ये तो प्रेशर की यूनिट है। न्यूटन पर मीटर किसकी है भाई? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज प्रेशर। तो प्रेशर की ऑप्शन एच भी ठीक लग रहा है। पास्कल तो होती होती मालूम है हमें। प्रेशर के यानी कि दो ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं आपको, तो ये आपकी मैचिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 38 एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। द एजर्शन सेज, एजर्शन का मीनिंग है कथन, क्या कहा जा रहा है? द एम्पेरिकल मास ऑफ इथीन इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। इथीन का अगर आप मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो C2H4 से आप निकाल पाओगे। और इसका अगर हम बात करें एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो वो कितना आ जाएगा? C2H4 का CH2 आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट होल नंबर से डिवाइड अगर करेंगे तो C2H4 से क्या आ जाएगा? CH2 आ जाएगा। तो ये बात सही लग रही है कि एम्पेरिकल मास जो है इथीन का, वो मॉलिक्यूलर मास का क्या होगा? जस्ट हाफ होगा। रीजन क्या दे रहे हैं देखो भाई, द एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये बात भी सही है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा तभी पॉसिबल, जो फर्स्ट एजर्शन तभी ठीक हो पा रहा है जब ये वाला बात सही है, सेकंड वाला रीजन जो है सही है। इसका मतलब 38 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, जिसमें हम कह रहे हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन भी ठीक है, एजर्शन भी ठीक है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है। इसलिए 31 के फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 एजर्शन सेज वन एटॉमिक मास यूनिट is defined as 1/12 of the mass of one carbon atom। तो सुना हुआ सा लग रहा है, डेफिनेशन बिल्कुल सही है। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो कार्बन के 1/12 के एटॉमिक मास से कितना टाइम हैवियर है, वही होता है। तो एजर्शन ठीक है। रीजन में बोल रहे हैं कार्बन 12 आइसोटोप इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड हैज बीन चूजन एज स्टैंडर्ड। बात सही है ये। कार्बन के तीन आइसोटोप्स उन्होंने 12, 13 एंड 14, जिसमें से 14 वाला रेडियो एक्टिव है और 12 वाला सबसे ज्यादा मिलता है। तो ये रीजन तो ठीक है भाई, लेकिन ये फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये तो एक हमने रेफरेंस एलिमेंट चुन लिया कार्बन को, उसके रेफरेंस में हमने सारे एलिमेंट के एटॉमिक वेट निकाले। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ठीक हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए सेकंड वाला, जिसमें कह रहे हैं बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो यू विल गो फॉर